Dear students, my today's lecture is dedicated to those who are struggling for the means to write a research paper. Means how to write a research paper and what are the contents should be there inside, and or you can say how to start writing a research paper. So in this screen you can see this is the published paper authored by me and my supervisor when I was doing PhD at IIT रुड़की. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए कि लाइक एक प्रोजेक्ट टाइटल होना चाहिए, एंड देन these are the author's information and abstract. So abstract, main body and conclusion, these three are important. So abstract क्या होता है, what is the abstract means, it includes the problem identification, what are the problems you are facing, and what are the approaches to solve that problem. कि लाइक इन दिस केस स्पेस में रोबोट जाने के बाद उसका बेस क्योंकि फिक्स नहीं होता, अब वो फ्लोटिंग रहता है, अब फ्लोटिंग रहता है, इन दैट केस हाउ टू कैप्चर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, लाइक सैटेलाइट भेजा जाता है, तो उसके बाद आफ्टर फुलफिलिंग इट्स पर्पस, उसके बाद तो स्पेस में ही वो टम्बलिंग करता रहता है, उसको डिकम्पोज करना होता है. सो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, to capture the unnecessarily the objects you can say or satellites they are roaming in the space, और उसको प्रॉपरली कैसे कैप्चर किया जाए और कैप्चर करने के फिर क्या तरीके होने चाहिए. सो इन अब्स्ट्रैक्ट यही चीज़ डिस्कशन किया जाता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में, अब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच हो सकता है हमारा, क्या सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो सकता है, एंड लास्ट में कंक्लूजन. या कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में क्या है, व्हाट इज योर सॉल्यूशन, and that you have to show in means that you have to quantify. Suppose the trajectory you are able to get with that much accuracy, error is less, like that, तो error कितना परसेंट लेस, ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग. सो अब्स्ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, अब कंक्लूजन में क्या करना है, हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए, हाउ टू गॉट द सॉल्यूशन, okay, that you have to discuss. And in research paper everything should be justified, like it happens, okay. So why it happens, that you have to justify. If you are not sure, then you may write it may be due to the reason, may be due to like that, but ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, और सपोज approaches, solutions, controllers, whatever you're going to use to solve that problem, उसको भी justify करना है, why you are taking, why means why your approach is that only, why not other approaches. So ये भी रिसर्च में आता है, ओके. और अगर मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में आपका so the main body, or you can say the structure of a research paper, it has introduction, then body, then conclusion, and in more detailed way abstract already we have discussed, then introduction, or you can say the thesis statement. So in introduction there should not be too much basics like definitions, it should be advanced level, but it should tell about the uh, means the title, the project, the briefing about the project, okay. And then the literature review, कि whatever you're going to do, whatever you're going to do means the task, the project task you're handling. So you have to give some support from the literature. So what informations we get, कि your idea is whether totally new concept, or this kind of things means the research
already available. Okay, and but at what level? कि हो सकता है आपका रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में या तो आप कॉस्ट मिनिमाइज करें या एफिशिएंसी बढ़ाएं, या दूसरा क्या होता है आप टोटली एक नया कॉन्सेप्ट दे दें, लाइक आपका न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, या फिजिक्स में बहुत सारी जो लॉस है, ठीक है, वो सबका जो लाइक डेरिवेशंस, द न्यू कॉन्सेप्ट. Okay, but suppose incremental research is there. Okay, so what is new in your research? That you have to compare with the available literature. Literature का मतलब क्या है? Published paper, जैसे आपको पहले अभी जस्ट दिखाया, published papers हो गया या books हो गया. Okay, or you can say the online materials available in the internet, वो हमारा लिटरेचर है. तो उसका रिव्यू करना कि लाइक इन सीक्वेंस ईयर वाइज. जनरली क्या करते हैं, 10 years का रिसर्च पेपर, द वी सेलेक्ट 10 years रिसर्च पेपर एंड देन रिलेटेड टू आवर टॉपिक. उस टॉपिक को आप जस्ट आप कीवर्ड्स को यू हैव टू सर्च. Where you have to search? Either in Google Scholar or any journals site like IEEE जर्नल है तो वहाँ पे जाइए आप, ठीक है, गूगल में टाइप कीजिए और वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिए, ठीक है, या गूगल स्कॉलर में आप जैसे ही सर्च करेंगे सब कुछ आ जाता है, वो आपको सीधा वेबसाइट पर ले जाता है, एक पर्टिकुलर जर्नल के वेबसाइट पर ले जाता है. ओके, सो फ्रॉम दैट आपको ईयर बताना है कौन से ईयर में पेपर पब्लिश हुआ, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स. ओके, आपको यह भी बताना है कि अगर इफेक्टिव रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो आपको यह भी बताना है कि व्हाट आर द थिंग्स आर मिसिंग इन दैट पेपर, और यू कैन सी क्या डिमेरिट्स है उस पेपर में जो हम अपने नया वर्क में उसको ओवरकम कर सकते हैं. ओके, देन मैथडोलॉजी कि व्हाट मे बी द प्रॉपर अप्रोच टू डील विथ द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, आप मॉडलिंग कर रहे हैं, सिमुलेशन कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, लाइक यू नीड टू डिराइव इक्वेशंस, you need to tell about the experimental setups, you need to tell about the hardwares, softwares required. Okay, and you need to derive the again repeating derive the equations related to your topic. Okay, then at the last, not last, after that results में आपको बताना है what are your findings, and also you have to justify your findings, why you are getting that, whatever you are getting. If there is changes in the sharp changes in the curve, you have to justify why there is changes, what may be the reason, what may be, मतलब क्या वजह हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है. तो और डिस्कशन में आपको सिर्फ बताना नहीं है और उसके बारे में डिस्कस करना है कि लाइक ये करने से ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और क्या करने से फिर अगर सपोज अनवांटेड things we are getting, so what are the parameters, so that we can correct that. Like I'm from robotics background, so I can say suppose due to if motors or controllers are not sufficient, so trajectory tracking we cannot get, means the object in the space we cannot capture properly. ठीक है, so ये आपका डिस्कशन में. So फिर what may be the solution, then we increased the gain parameters of the controller, then we got this result, and this result we can recommend this may be good for the particular task, and also and then also you have to verify with the available data, available research papers. ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, अगर आपका न्यूमेरिकल रिसर्च है, न्यूमेरिकल लाइक मॉडलिंग सिमुलेशन है, तब आप जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उससे आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज़ सेम चीज़ अवेलेबल हो, नहीं तो रिसर्च क्या होगा, कुछ भी हो उसके साथ आपको कंपेयर करना है. देखिए इसमें यहाँ तक रिसर्च हुआ था, अब मेरा उसके आगे का रिसर्च है, या इसके पहले जो रिसर्च हुआ था उसमें ये कमियाँ था, अब मेरे में वो कमियाँ को दूर किया गया है. ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट वर द मिसिंग्स इन दैट पेपर इज नाउ overcome by my paper, and I have got the better results. In this way you have to uh,
मीन्स वेरीफाई। ओके, बात करते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन तब होता है जब आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है। ओके, एंड वैलिडेशन विद द अवेलेबल, अगेन अवेलेबल रिसर्च पेपर्स। ओके, देन रेफरेंसेस कि इन द लिटरेचर रिव्यू what are the literatures you have cited in your research paper. So full details you have to give, like in this आप देख सकते हैं रेफरेंसेस। ओके, 1 2 एंड 1 में आप देख सकते हैं व्हाट आर द इंफॉर्मेशन आर देयर। सो द ऑथर्स इंफॉर्मेशन इन दिस 2 ऑथर्स आर देयर एंड दिस वन इज non holonomic path planning of space robots via bio and directional approach. This is the title of the paper, and the publication publisher details मीन्स जर्नल डिटेल्स। तो ये आपका IEEE में विच जर्नल आपका ट्रांजेक्शन ऑफ रोबोट ऑटोमेशन। ठीक, देन ये कब पब्लिश हुआ वो भी देना है आपको। देन आपका वॉल्यूम नंबर, देन द पेज नंबर, ये डिटेल्स देने होते हैं। अब देखिए आपका 1 और 2 का मतलब क्या है। सो वेयर आई हैव साइटेड 1, आई एम फाइंडिंग 1, वेयर इज 1। So that one can understand how to cite the literatures in their own research paper. So where is the 1? It is somewhere, I'm not finding. It may be, yeah, I found it. Here you can see here नाकामुरा एंड मुखर्जी, एंड देख सकते हैं आप 1 लिखे हैं आप यहाँ पे। ये जो 1 जो ये शो कर रहा है दैट रिसर्च पेपर। जो लास्ट में रेफरेंसेस हमने दिए हैं 1 2 3 4, इन दिस वे यू नीड टू साइट इन योर रिसर्च पेपर। ओके, एंड देन अपेंडिसेस। ये होता क्या है ना, सपोज कुछ इक्वेशंस है, लेंदी इक्वेशंस है, एंड इट इज टेकिंग टू मच स्पेस, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं। सो वो क्या करता है, फ्लो को ब्रेक करता है। फ्लो को ब्रेक करना मतलब सपोज रिव्यूअर्स आर रीडिंग योर रिसर्च पेपर एंड द फ्लो नीड टू बी मेंटेन्ड। सो फ्लो ब्रेक ना हो करके क्या करते हैं, जो ऐसी चीज़ें लाइक फ्रॉम दोज इक्वेशंस, फ्रॉम दीज इक्वेशंस आर गिवन इन एज अपेंडिसेस। ठीक है, वो लास्ट में है। ठीक है, रेफरेंसेस के बाद लास्ट में इफ समवन वांट्स टू रिफर कि आपका इक्वेशंस कैसे जनरेट हुआ एंड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सो फ्रॉम देयर वन कैन रिफर। या ऐसा फ्लो डायग्राम्स हैं। सो बीच में स्पेस की कमी की वजह से या फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम एज शोन इन फिगर द फ्लो चार्ट इज गिवन इन अपेंडिक्स 1 2 3 वॉट एवर। ठीक है, तो यही आपका मेन आपका स्ट्रक्चर है। दीज आर द कंटेंट्स, इट शुड बी देयर इन एनीवन्स रिसर्च पेपर।